to BW Healthcare World. My name is Harvinder Narula, and on this World Heart Day, I'm privileged to have with me Dr. K.K. Talwar, who's been a pioneer in cardiology, who made remarkable contributions in the development of cardiac care in India. From performing India's first implantable cardioverter defibrillator, also known as ICD therapy, to introducing cardiac resynchronization therapy, which is also known as CRT, his work has set benchmarks in medical advancement in our country. A former chairman of the Medical Council of India, Dr. Talwar's expertise continues to influence the cardiac science as the chairman of cardiac sciences at PSRI Hospital, New Delhi. As a recipient of Padma Bhushan and BC Roy Award, his impact on the healthcare industry has been extremely profound. It's our privilege to have Dr. K.K. Talwar with us. Welcome to BW Healthcare World, Dr. Talwar. Thank you so much for taking out time to speak with us today. With technology advancements in ICD, CRT, therapy that you have pioneered in this country, how do you see the future of heart care evolving in the future? What is it that you see the impact of technology in the coming times, specifically for heart care? Well, thank you so much for this opportunity. You see, the kind of progress which has happened in cardiology in the last, I'll say, decade or so is enormous. I mean, there's certain kind of treatment that we have today. It is very difficult to imagine. Few years back, it is possible. Now, आपने ICD की बात करी. Let me just share a small example how people think about it. You see, the defibrillator is big size. It weighs around 5 to 10 kg kind of thing in the hospital. Dr. Miroski, he was in Israel. I mean, he was a cardiologist there, and one of his teacher, who was also his neighbor, had a heart attack some years back. And during attack, after that he had some tachycardias, some BTs, so they had to cardiovert couple of times in the hospital. So he was discharged, came home, and suddenly one day at home he collapsed. So he being a neighbor, rushed to his house, then shifted him to the hospital, but he died on the way. So he thought, okay, if I would have a defibrillator by my side, but him, I could have been able to save him. And this thought made him to think about ICD. And many people, when he thought, everybody said, it's impossible. What is this? I mean, how it can, this much machine, how you can make it like a pacemaker? But I think he worked for 11 years and then he came to John Hopkins, joined there. So, and then he made, so I think the kind of advances which has occurred is enormous. And in future also, like, I think the 2-3 areas which I think in future, if you are asking me what in future, AI of course is there, is already come. It is going to be a game changer for diagnostic. Diagnostic, to some extent prognosticated, be there, okay, this is analysis. How much he is going to, because everybody doesn't respond to the same therapy similarly. Let's say every kind of jacket doesn't fit everyone in medicine. So, I mean, they will help you to precise medicine. It may suit him, this may not suit to individual, this medicine may suit better, this may be suit. So, this is one area which is going to come. The second, I think, is regenerative medicine. I mean, I frankly feel, because now the time has come, can we grow heart cells? Can we grow organs? And I am sure, probably, I mean, it's matter of time, things are going to come. I mean, human mind, human brain, and with the technology coming, and the way, look at COVID vaccine, that within 11 months you could have a vaccine. I mean, normally vaccine takes 10 years to come. I mean, that's the thing. So what I mean that this is mainly continuous knowledge, technology, which is going to help. So heart care also, I think prognostication, you may know today now, even looking at a ECG,
Somebody may tell you, well, after a few years you are prone to this problem, you are prone to this problem, so you may take more precaution. So I think these are the area which is growing. Of course, we also have now in new medications, drugs, particularly, so which can cure you even. I mean, like heart attacks. And that's the process is atherosclerosis. The deposit hota hai material in the coronary arteries, makes it narrow, you get heart attack. Now tomorrow if you have something which will prevent its deposition, or even it deposited, help to dissolve it. I mean, so these are the kind of things. So in medicine, the way I think in the last decade one has seen, at least I have seen in my career, cardiology, it's, I mean, I mentioned your YCD drugs. There is one drug which today is must for heart failure. If a candidate doesn't tell in the examination, there's a patient with heart failure, I will use this drug, he will be, that he doesn't know about it. When I was doing my cardiology, if I would have mentioned that this drug may be helpful, I would have failed. Because it was thought this drug has a negative effect on the heart. How is he talking like that? So what I mean is the way things is a human, some observation comes, some people keep on thinking. So there is a, I'm sure the next, it should be how to prevent. That the longevity is going to go up that way. So, when we're talking of how to prevent, and we have genomics which is now playing a very important role, and we also know that in cardiology, a lot of it is because of hereditary also. And I think the predictability leads to prevention. I mean, if you know that you are going to be prone to this, then you can do something about it. Do you think, are we moving some, are we seeing some advancements in this stage so that you can prevent heart conditions through technology? See, this is what when we talked about up AI le lo, genomic le lo, because what is precise medicine or personalized medicine? Correct. This is what that on the basis of this knowledge, right, that say the organ, like we have now in cardiology, there are certain genetic arrhythmic disorders. Correct. So if you by testing, you can find, oh, you are prone to this. You may develop a sudden death. So you may be able to provide a more preventive kind of a approach. Absolutely. So ये जो चीजें हैं ना, medicine, the way it's growing, my only feel is that we as Indians, I think we should also explore the knowledge in our Ayurvedic system. I feel so because personalized medicine was a concept in that. ये जो त्रिदोषा की बात करते हैं, on the phenotype they will say कि इसको ये दवाई सूट करेगी, इसको ये, उसमें कुछ था. Unfortunately, जो basic science है ना आयुर्वेद में खत्म हो गई. People who are in Ayurvedic, they are not very, I mean, they are not really into science. They are not that thing. So वो जो है ना एरिया थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए. अब देखिए जो चाइना को, चाइनीज फिर थोड़ा करते हैं अपने हर्बल पे, दे डू द साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट इट. जो वहाँ का नोबेल प्राइज मिला जिसको, डॉक्टर यू, शी वाज टोल्ड बाय द टॉप मैन कि भी मलेरिया बढ़ा हो रहा था, रेड आर्मी वाज अंडर ह्यूज थ्रेट, मलेरिया पीपल वर डाइंग. तो अपने ही उन्हें सिस्टम से जो आर्टेमिसिन निकाली, एंटी मलेरियल, which I think became one of the breakthrough for malaria, even countries जहाँ, तो मैंने, I mean she got Nobel Prize, but I mean ये जो चीज़ें हैं ना, हमें close नहीं होना चाहिए. अभी साइंस के लिए it's important. So I think the future is both are preventive, even precise medicine prevention के लिए भी है. It's not only therapy, it's only for prevention also. So these are the. जैसे आपने बात करी चाइना के अंदर, you know, they were able to come up with medicine because there was a problem that was identified and they realized that something needed to happen in that particular space. A lot of innovations have happened in India. We've contributed in a lot of ways to the world as well. What do you think in cardiology is the role of senior doctors like you to
create that culture of innovation without fear to be able to create these advancements, because a lot of these advancements actually happen by observing the patients on everyday basis. How can we create a culture of innovation? What you said is, I think, very important. For example, today we can claim that we have expertise in the country. For any cardiac condition, people don't have to go out. Correct. And rather people are coming from outside, because it's not only the quality confidence, it's also the affordability. Yes. That cost wise also much less. We patient जो अब Central Asian से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, adjoining countries से आते हैं, and because they feel कि it will be far expensive in Europe or in America, they come here. हमने उस एरिया में, मैं कहूँगा, we have really, I mean, there's a lot of we have to give credit to our system, we encourage, and we have that strength. The second part जो है innovation का, that how much we have innovated into that. Because आजकल most of the जो आती हैं बाहर होती हैं, फिर हम ले आते हैं, then we practice kind of a thing. Even like in cardiology, still many of the kind of equipment that we use, we import. Correct. And that also affects, हमें ना, we need to now strengthen our research and innovation areas. हम कहते तो हैं, पर उसके लिए ना थोड़ा हमें environment create करना पड़ता है. Now these are young minds. अब young people आते हैं, colleges में आते हैं, medical college में आते हैं. They're very open. I mean, a young generation is open to it. You only have to give them direction as well as environment to go further. हमें ना इस पे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए. ये जो चीज़ है, एक तो पर्टिकुलरली इन मेडिकल साइड, आई थिंक हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. मैं मेडिकल काउंसिल में 2 साल आई हेडेड द काउंसिल. ठीक है, वी नीड मोर डॉक्टर्स, वी नीड मोर सीट्स, बट हमें एकदम एक्सपेंशन जो है अफेक्टिंग क्वालिटी, वो ठीक नहीं है. बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू गेट पीपल हु आर नॉट रियली, दिस प्रोफेशन इज डिफरेंट. Rula Saab, I must tell you, this profession is different from one angle. I mean, एक तो है कि it needs a lot of hard work, because you are dealing with human health. You are not dealing with anything, and you must be also very knowledgeable that you don't do anything which can harm. ये human health है, because उसके लिए आसान नहीं है. You have to have a knowledge, you have to gain those skills, and you have to be sure and ethical also. So, and ये lot of sacrifices है. In the sense, ये नहीं है कि आप sick patient है, you know he needs, ये है, ये नहीं करनी, मैं तो वहाँ जाना है, मेरा तो वही काम है. You have to do the secondary. The patient becomes your first thing. So उसमें you have, so ये this branch के लिए ना थोड़ा सा मेरा ख्याल, I mean I feel the society को लोग, they have to be also given the same kind of feeling. मैं नहीं कहूँगा कि रेम्यूनरेशन दैट्स इम्पॉर्टेंट, वो भी ज़रूरी है टू अट्रैक्ट द ब्राइट ब्रेन्स. अब देखिए इंडिया में अब 94-95 से पहले ले लीजिए, कॉलेजेस जो थे, गवर्नमेंट के ज़्यादा कॉलेजेस थे. ये नहीं मैं कहता कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत था जहाँ जैसे हम पढ़े लोग पढ़े, बट वी हैड वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, वर सो मच डिवोटेड टू टीचिंग एंड स्टूडेंट्स कि वो लोग घर घर की बुला के भी पढ़ाते थे. ये नहीं था उनको कि भी हमने इससे क्यों पैसे लिए. मतलब वो थीसिस जो होते थे हमारे, मैं याद है जब MD थीसिस था, मेरे जो थे गाइड घर बुलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, कुछ और करेक्ट भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे. ये चीज़ें कुछ चेंज, ये जो कल्चर है ना, हमें लाना है. बिकॉज मैं एक इंस्टांस विच आई थिंक आई कैन शेयर विद यू, वेदर यू, मैं मेडिकल काउंसिल में था, तो एक लड़का आया मेरे पास कि सर मेरा MD का थीसिस साइन नहीं हो रहा, बिकॉज हमारे MD थीसिस के बाद ही आप अपीयर हो सकते हो, 6 महीने का गैप है. कि माई गाइड इज़ आस्किंग मी कि कुछ, आई टेल यू आई वाज शॉक्ड. मेरे को तो पहले सुन के ही, आई मीन आई वाज रिमेंबरिंग आवर डेज, भी कैसे वो हमें बुला के, मतलब आई रिमेंबर वो मेरे एक टीचर थे, चाहे वो कश्मीरी कावा पिलाते थे, कभी उनके कुछ, मतलब ऐसा मतलब था.
ये हमें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको टीचर अच्छे चाहिए, डिवोटेड चाहिए। हमें एक बार जो एक्सपेंशन क्यों करते हैं, वी नॉट हैव दोस एंड वी रोल मॉडल नहीं अगर होंगे, अगर टीचर वो नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स नहीं सीखेगा। आप उस किसी को ठीक है सख्ती से कुछ करा सकते हो, बट माइंड को मोटिवेट करने के लिए आपको उसको स्टिमुलस देना पड़ेगा। उसको आपको मैंने जब ज्वाइन किया है पीजीआई में FRMD, हमारी 8 o'clock मीटिंग होती थी। होल इंस्टीट्यूशन सपोज टू बी देयर, डायरेक्टर एंड डीन विल बी देयर 1 minute बिफोर 8 o'clock। आई नेवर सॉ अ डायरेक्टर कमिंग लेट। तो हमारे लिए फिर मतलब कैसे आप लेट हो सकते हो? सो ये जो चीज़ें हैं ना, एक कल्चर है। सो हमें कल्चर लाना है एनवायरनमेंट और रिसर्च का इन दिस मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इफ वी हैव टू इनोवेट ऑल्सो, वी हैव डन क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, यानी कि हम केयर बहुत अच्छी है आजकल, बट व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वो बहुत, अगर हमने टुमारो वी हैव टू बी लीडर इन मेडिसिन, वो जो लिए जो वो कल्चर है ना, वो उसके लिए। और थोड़ा सा रिसर्च में एक चीज़ और है, रिसर्च में देखो आप कुछ काम कर रहे हो, यू मे सक्सीड और नॉट सक्सीड। लाइक जैसे मैंने ICD की आपने कहा, डॉक्टर लाउन बर्नार्ड लाउन ने डिफिब्रिलेटर जो DCL है, मेन क्रेडिट टू हिम कि ही इज़ द वन हु गॉट अ मेरिट एंड देन पीपल कुड बी सेव फ्रॉम सडन डेथ। उसकी अपनी स्टेटमेंट थी इस ICD के बारे कि नो इट्स नॉट पॉसिबल। एडिटोरियल में लिखा उसने, मतलब हालांकि पर्सन ऑफ हिज स्टेचर, बट आई मीन टू से कि बट ही परसिस्टेड। तो थोड़ा बट एनवायरनमेंट था, ये नहीं है कि लोग। सो मैं कहना हमें अब जो मेडिकल साइंस है, हमें क्वालिटी ट्रेनिंग पे स्ट्रेस रखना चाहिए। इट्स ए असेट टू द नेशन। अब देखिए 94 से जो कहते हैं डॉक्टर जो बने, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे चाहे बाहर गए, पीपल आउटसाइड, यूरोप ले लो कुछ डॉक्टर हैं, अमेरिका में तो हैं ही बहुत, पीपल प्रेफर टू बी सीन बाय इंडियन डॉक्टर बिकॉज हमें थोड़ा एम्पैथी हमारे कल्चर में है। अब ये नहीं है कि रात को टेलीफोन आएगा तो मैं नहीं उठाऊंगा पेशेंट का, मतलब वहाँ तो सोच ही नहीं सकते, आप तो सोच ही नहीं सकते, ये नेचर है। वी हैव बीन टॉट कि नो हेल्पिंग अदर ये ज़रूरी है। आपको एक प्रोफेशन मिला, आप किसी का हेल्प कर सकते हो, तो ये हमारे थोड़ा DNA कह लो में हमारे में है। बट ये हमें प्रिजर्व करना है ये प्रिजर्व करना, बिकॉज जैसे आपने बताया ये कल्चर जो सा है, द फंडामेंटल ऑफ दिस कल्चर इज़ द वैल्यू बेस्ड सिस्टम, और उस पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो इनोवेशन बनाने के चक्कर में हम बेसिक्स अपने भूल जाएंगे जो हमारी स्ट्रेंथ रही है। दोनों वो भी स्ट्रेंथ है, और दूसरा इनोवेशन हमें लानी पड़ेगी। हमें ब्राइट ब्रेन्स को इनकरेज करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, कल्चर देना पड़ेगा, और ये भी देना पड़ेगा कोई आप काम कर रहे हो अगर नहीं सक्सीड होते, द फेलियर शुड बी ऑल्सो रिस्पेक्टेड। मेरा ये जो है ना, एफर्ट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड मोर देन द आउटकम। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान को क्या पता है कल को क्या होना है, अगर वो 11 साल ICD पे लगा रहा, नहीं बनता तो नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये जो 100% तो नहीं हो सकता, देयर विल बी मेनी इंस्टांसेस वेयर पीपल हैव मेड एफर्ट एंड नॉट सक्सीडेड, बट जो हमने रिस्पेक्ट टू द एफर्ट जो है ना, वो हमें उसमें कल्चर लाना चाहिए, particularly I'll say in our medical institutions particularly. Sir, another big issue specifically for India has been that हमारे यहाँ पे कार्डियक कंडीशंस या केसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है। एंड इस बारी का जो थीम है वर्ल्ड हार्ट डे का इज़ यूज़ हार्ट एंड नो हार्ट। A responsibility of this lies on all the people who are at the decision-making positions, whether doctors, whether institutions, whether the elders at home. How do you think we can change the environment which is conducive for people to start acting on trying to manage the diabetes and hypertension growth? क्योंकि हम अवेयरनेस तो बहुत देर से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लोग सुनते हैं, जानने के बावजूद एक्ट नहीं कर रहे उसके ऊपर। देखो ऐसा है कि एक तो है कि अवेयरनेस आपने कहा, लॉट ऑफ मीडिया इज़ यू ऑल ट्राई टू, ये होना चाहिए। सेकंड पार्ट इज़ जो होना चाहिए
उसकी अफोर्डेबिलिटी भी आती है। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप कहो भी आप अपना शुगर टेस्ट कराओ, भी शुगर ना हो, ठीक है, निकल आती है, तो देन ही मस्ट हैव द मीन्स टू ट्रीट। एक्चुअली लॉन्ग टाइम बैक जब मिनिस्ट्री ने, मैं एम्स में था, ये प्रोजेक्ट इशू किया था कि हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो, तो यही क्वेश्चन देखो जी, करना चाहिए बट एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड। अगर किसी को है जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो हमें कुछ सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि भी थोड़ा साथ साथ हमें अगर कोई प्रिवेंटिव अवेयरनेस है, ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है, उसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ एफर्ट हैं गवर्नमेंट की, बट आई थिंक देयर शुड बी मोर। नंबर 3, अब मेडिकेशन का भी थोड़ा जो है ना सवाल, थोड़ा अफोर्डेबल ना, क्वालिटी भी है। देयर इज़ अ लिटिल इशू ऑन दिस, टू वेरी फ्रैंक। कहते हैं 25%। नाउ ये चीज़ें थोड़ा बाहर कम है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। यू मस्ट हैव सीन पीछे जो कप सिरप की स्टोरी आई, वो क्या है। एक ना थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव टू लुक एट अदर सोशल डिटर्मिनेंट्स जो हम कई बारी मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल अडल्ट्रेशन फूड इज़ ए बिग इशू, बिकॉज अगर आपकी फूड अडल्ट्रेटेड है दैट कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर शुगर जो है, अगर आप, तो ये अडल्ट्रेटेड फूड है। सैनिटेशन इशू है, एनवायरनमेंट है, अच्छा एक्सरसाइज है, पॉल्यूशन है तो वो भी है, एक्सरसाइज है। अब देखिए हम कॉलोनी इतनी बनाते थे, पर हमें वी डोंट थिंक कि उसके साथ कोई प्लेस वेयर पीपल कैन गो एंड वॉक एंड डू इट। हाउ मेनी पीपल, आई टेल यू, मैं आई स्टे इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। If I really, when I always I'm fond of, I have to go to Ashwar Village, I may have to go to Lodi Garden. जो वहाँ के लोकल थोड़े हैं, they are not, by the time you even walk to them, इतनी pollution है। बट ये ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते भी ना, हमें ये लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए भी ये जो चीज़ें हैं इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। मतलब हेल्थ तो इज़ वेल्थ ही है, पर हेल्थ के लिए अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन तो ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक है, पर ये जो इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन है, अडल्ट्रेशन है, आप सच्ची बात है, आप जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल, आई नीड टू से वी आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट ऑन कंट्रोलिंग और एजुकेटिंग दी। इवन स्टेज है कि लोग पैसा थोड़ा कमाने के लिए दुकानदार भी क्यों ऐसा करते हैं, कल को किसी का अपना बच्चा भी तो वही खाएगा। हमें थोड़ा इस तरह का, और एक थोड़ा हमें ना स्कूल और कॉलेजेस पे स्ट्रेस करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें यंग एज से ज़रूरी भी हैं, और वहाँ पे जो मन में इम्पेक्ट बनता है, टेल यू कि भी स्कूल में स्मोकिंग के बारे हो गया था, भी स्मोक नहीं करना चाहिए। बच्चे आगे पेरेंट्स को कहते थे लाइट नहीं क्रॉस करनी, तो बच्चे आगे कहते थे आप क्यों क्रॉस कर रहे हो। ये हमें ना थोड़ा अपने स्कूल्स पे, कॉलेजेस बॉय, हमें स्ट्रेस करना चाहिए ऑन हेल्थ इशू ऑल्सो। एंड पर्टिकुलरली जैसे कुछ पंजाब में मैं थोड़ा जब PGI में बना था, तो आई वॉज एक्चुअली आफ्टर आई लेफ्ट फिनिश माई PGI टेन्योर, तो गवर्नमेंट पंजाब वांटेड मी टू बी एसोसिएटेड। मैं 11-12 साल एज ए ऑनरेरी एडवाइजर। तो ये अभी ड्रग इशू था मामले में। तो ये क्वेश्चन यही है कि हमें अपने, कहते हैं जब मैं ही कहते 15 से लेके 16 साल की उम्र से 22-23 साल की उम्र है, 21-22 की, जो बड़ी वल्नरेबल एज है। हमें ना थोड़ा हेल्थ इशू पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एजुकेशन प्लस एनवायरनमेंट टू प्ले। असली हेल्थ नेशन की ग्राउंड्स में है, मतलब वो बहुत मिसिंग। अब आप स्कूल है, ठीक है, उनके ग्राउंड्स हैं, आई विल से दे शुड कंपल्सरी हैव 1 आवर ए कंफर्टेबल प्ले पीरियड। ये नहीं है बच्चा 7 बजे निकला है घर से और 2 बजे आ जाना है, वहाँ थोड़ा बहुत खिला देते हो, नहीं, उनको चाहे शाम को 1 घंटा रिलैक्स होने के बाद आप कहिए आप खेलना है। सैटरडे को आप स्कूल खोलिए खेलने के लिए, भी सैटरडे कुछ पढ़ाई नहीं होएगी, बंद है, प्ले होगा। इसी ये छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, हमें नेशन के लिए, आगे के लिए करना चाहिए। और सच्ची बात है कि अब यंग जनरेशन, अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, बीमारियां भी ज़्यादा हैं, बट एक जो इशू आ रहा है स्ट्रेस टू द यंगर पीपल। जो लड़की शी पास्ट अवे
एंड दे आर सेइंग कि ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था। बहुत सारी चीज़ें सर, एक तो यंग लोग हैं जिनको सब कुछ आसानी से मिल रहा है, खाना चाहिए तो मोबाइल पे ऑर्डर कर दिया, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल के लिए कोई रिसर्च करनी है तो गूगल से कर ली। मेरे को याद है हम लोग एम्बेसीज में घूमते थे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। they have not been taught how to handle anxiety, failure. वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है बट मोबाइल साथ में आ गया तो यू आर कनेक्टेड ऑल द टाइम, एंड ऑफिस से फ़ोन आ गया तो आपको रिस्पॉन्ड करना ही है। वर्क प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द इम्पैक्ट ऑन द यंग पीपल जिसकी वजह से कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम आगे बढ़ने वाली है, और हमें क्या करना चाहिए? कॉर्पोरेट लीडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रेस पर्सनली आई फील कि इट्स बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिस्क फैक्टर नाउ फॉर द कार्डिक प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी इशू भी हैं, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, बट स्ट्रेस एंड पर्टिकुलरली यंग जनरेशन एंड द वे दी यंगर पीपल आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, particularly in corporate jobs. I tell you, a few days back somebody came and asked me, मेरे यहाँ सर मेरे ऑफिस में 2 छोड़ के चले गए, सारा काम मेरे से करवा रहे हैं, तो आप लिख देंगे कि मेरे को ओवरवर्क ऐसा कुछ में। मतलब काम करने से कोई इंसान कहते हैं ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये कि ही एंजॉयज द वर्क। आपको ना एक तो अपना उसका काम इंजॉयबल करना चाहिए। सेकंड थिंग, थोड़ा सा आज देखिए ये इशू पे बड़ा मेरे को, मैं मतलब सोचता हूँ कि देखो कई बार हमारे पास आते हैं यंग पीपल, लोग 30-40 पे, यार इस उम्र में क्यों आए हो, इस उम्र में तो नेचर काइंड है, क्यों बीमारी हो, मतलब वो भी सच्चे हैं जो आजकल देख रहे हैं आले दाले तो क्या होता है। तो पीपल, यंगर पीपल पर्टिकुलरली जॉब में स्ट्रेस ऐसी है, सिक्योरिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट में सिक्योरिटी होती है, कोई हटाएगा नहीं, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। एंड फिर वो जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, कई बार सम पीपल जो बेचारे ज़्यादा काम करने वाले होते हैं उसको ज़्यादा तंग किया जाता है। काम नहीं, मेरे को लगता है कि जो सीनियर भी कई बार होते हैं टू हैव भी ऊपर अपने शो करने के लिए, जी मैंने ये करा दिया वो करा दिया, दे डोंट रियलाइज़ कि वो नीचे भी क्या है। ये थोड़ा जो इस तरह की जो है ना, हमें the corporate groups, I'm sure most of the groups they have enough for themselves, they should look into this area. जैसे कुछ ग्रुप सुनते हैं, ये टाटास कहते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए उनका अप्रोच डिफरेंट है। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट का ये भी चाहिए एज ए काइंड ऑफ दैट, जो उनके पास आए हैं उनको हमने कैसे नर्चर करना है। ठीक है, हायर फायर पॉलिसी है, नहीं कोई काम करता क्या करो, अब आपको तो काम तो कराना ही हो, ठीक है, हो सकता है, बट देन मोस्ट पीपल आर नॉट लाइक दैट, वेरी फ्यू हु मे बी ऑफ दैट काइंड। नहीं तो जिसके इंसान को पता है मैं घर जाना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे फादर हैं, मदर हैं, मतलब वी हैव बीन टॉट लाइक दैट कि भी नहीं हमें अपना नहीं, अपने फैमिली का रखना है। मतलब फादर है, ही कांट, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी होनी, मतलब वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ एक कल्चर ने दी है, और दे आर वेरी नाइस, इज़ गुड, वी थिंक अबाउट अदर्स। एंड ये जो चीज़ है, इसलिए थोड़ा कई बार स्ट्रेस उस पर हो जाता है, मैं क्या करूँगा अगर मेरी नौकरी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा हमें इनको सिक्योरिटी का रखना चाहिए। कॉर्पोरेट शुड लुक एट दैट। काम मैं नहीं कहता कि काम नहीं, काम कराना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज ग्रो बाई वर्क, बट मेक इट मोर फ्रेंडली, मोर। हाँ, अगर कोई बच्चे को, कोई यंगर को है, नो हार्म टू इवन डिस्कस दीज इशूज़। कई बार किसी की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो नो हार्म सिस्टम शुड support him because they can be temporary. I mean, I'm sure all of us have seen through, I've been through a little some time when I was in PGI. I was just growing. There were some issues which was very stressful to me from my family. There were some tragedies. But I could see my seniors, my teachers. I mean, they knew कि मेरा कुछ ऐसा, they will support you, talk to you. अच्छा अभी काका तुम जाना चलेगा आज, मतलब कोई बाहर छुट्टी है, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि सिस्टम में थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए। ये जो स्ट्रेस है, हमें थोड़ा लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए। जो आपने कहा हाउ टू फेस स्ट्रेस, ये भी बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ईच वन इज़ नॉट डिफरेंट। समबडी मे फेस मोर, सम सरेंडर टू इट,
इफ़ यू सरेंडर टू स्ट्रेस यू आर गॉन। सो ये भी है कि हमें ये भी थोड़ा कि नहीं आपको फाइट करना है, बट थोड़ा सा कई बार फाइट करने के लिए सपोर्ट भी चाहिए होती है। सम टाइम यू हैव सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, इट्स फाइन, योर पेरेंट्स आर देयर, सम योर brothers are there to support you, but some people don't have that support। वो मैं कहता हूँ कारपोरेट को ये जो इंसिडेंस अभी हुई है, जिसमें वन इंस्टेंस आई थिंक मैनी पीपल यंगस्टर मस्ट बी फेसिंग, तो थोड़ा ये कल्चर, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट टू ह्यूमैनिटी। यू सी अब CS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के है, ये भी तो वही है, यही है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आप उसमें आपका आदमी है, वो तो आप दूसरों के लिए कह रही है मैं जी आप ये कॉर्पोरेट हम उसको पैसे देंगे, जो आपके साथ काम करते हैं आप उनका भी तो थोड़ा बता, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैम, ये थोड़ा सा। और ये जो बाकी हमेशा मैं कहता हूँ थोड़ा सा इनकी कल्चर में भी सब्सिडाइज फूड, ताकि लोग जंक फूड के ऑर्डर ना करें तो थोड़ा लिटिल सब्सिडी हेल्प्स द पर्सन कि भी सस्ता मिले खाने को, थोड़ा जिम्स वाला क्या तो अंदर हो, ताकि उनको इनक्रेज किया जाए, यार आधा पौन घंटा जाओ, यही है, 10 में से 2 जाएंगे, 2 देख के दोबारा फिर जाएंगे। ये ना हमें थोड़ा, हमारी नेशन आई है, वी हैव टू बिल्ड आवर नेशन। हमारी प्रॉब्लम है, वी हैव ए लार्ज पॉपुलेशन मैम, दिस इज़ द इशू। और इस पे जैसे मेडिसिन में मैं सोचता था, मैं फील भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि हमें अगर कोई हमारे पढ़ के बाहर जाना चाहते हैं, मतलब जाने दो यार, हमारे पास हैं, हमें और जनरेट कर लेंगे, दे कंट्री जितने अभी भी गए हैं प्रोफेशनल देख लिए, वो अभी भी देश की तरफ देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ दैम अपनी फैमिलीज़ का ध्यान देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिस तरह किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं वो भी करते हैं, नेशन को भी करते हैं। सो ये हमारी पॉपुलेशन जो है, ठीक है हमारा स्ट्रेस भी है, बट इट कैन बी आवर स्ट्रेंथ इफ वी यूज दिस मैन पावर टू हेल्प अदर्स। बाकी कंट्रीज में मैन पावर की इशू है, अगर हम, बट वी हैव टू ट्रेन देम वेल। 94 से पहले, 94 के बाद देख लो जो डॉक्टर जा रहे हैं, NHS में एग्ज़ाम होता है, आई एम टोल्ड, आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज के 60-70% पास हो रहे हैं इंडिया से, जो कि श्रीलंका बांग्लादेश के अराउंड 80-90% है। क्यों हो रहा है? हमें वी नीड टू बिल्ड ए जील फॉर ए क्वालिटी हार्ड वर्क, को हमारा है। वे आई टेल यू वन, मैं वेंट फॉर ए फेलोशिप स्वीडन में, आई वेंट देयर, तो जो हमारा चीफ था, आई डोंट नो हाउ ही वंस मेंशन टू मी, एक्चुअली आई हैड गॉन फॉर ए फेलोशिप, वी हैव बीन ट्रेन्ड, कोई काम का तो कोई सुबह से लगे हो ठीक है, दैट वाज आई थिंक द कल्चर दैट आई सॉ इन एम्स एंड PGI, वहाँ तो 8 बजे से 8 बजे तक तो रूटीन है, मतलब जैसे विच मे नॉट बी वेरी काइंड ऑफ इन अदर प्लेसेस लाइक दिस, ये 5 बजे है जी अब घर जाना है। तो उसने मेरे को एक सेंटेंस कहा, मैं सच्ची बात हैरान हो गया, ही सेड इंडियन तो चने खा के भी काम करते हैं, और मैं देखो इसमें मेरिट है, मैं फेल की, देखो हमें कोई नहीं है, हम कुछ भी हो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस वी कैन सस्टेन, मेरा क्या भी दिस हैज बीन टॉट लाइक दैट। सो ये जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर ये CSI उधर लगा दो, मतलब आप किसी को, you should make sure that those who are working with you, you take care of them. Absolutely, I think काम कितना कराओ उनसे, बट उनकी जो नीड्स हैं, नो हार्म टू, सम टाइम होता है, दिस शुड सिस्टम शुड हैव स्ट्रेंथ टू फाइंड आउट कि भी इसको क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक यू नो मेंटल हेल्थ आल्सो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। मेरे को लग रहा है कि ये जो आपने ना कहा, जो आप इसने यूज हार्ट नो हार्ट, मैं यूज हार्ट को कहूँगा कि क्रिएट एम्पैथी फॉर अदर्स, हार्ट का ही है, हैव अ हार्ट हाँ, टू बी एबल टू यूज हैव अ हार्ट, तो हार्ट फॉर अदर्स वो है, नो है कि ठीक है पता होना चाहिए भी इसका ठीक कैसे रखना है। सो ये थोड़ा नहीं, आई थिंक स्ट्रेस इज एन आर यंग जनरेशन इज गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट, न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं। अच्छा बच्चे भी क्या करें बेचारे, 2 जने हैं, रात को 8-9 बजे पहुंचोगे, क्या खाना बनाओगे, दे हैव टू डिपेंड अपॉन आउटसाइड, टू वेरी फ्रैंक। अगर वहाँ से क्वालिटी ठीक है, अडल्ट्रेशन नहीं है, शायद वो एस्पेक्ट तो आप हेल्थ में नहीं आएगा ना, वो भी तो इशू है। और दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप्स भी सर, वर्क पे मतलब
I have seen when our parents were working, आप लोगों ने जब career शुरू किया, institutions were more like a family. Like you said, when you were facing problem PGI में, your seniors were standing by your side. Relationships were not transactional. So it was a culture to help others. ऐसे ही ये जो था ना, ये भी नहीं कहते हैं ना कि we must teach our now generation, जो पहले भी था, spiritual practices. I don't think spiritual is religion. It's a practices. Absolutely. And the best thing is how you can sacrifice for other. अगर आप दूसरे के लिए किसी की ज़रूरत है, अपने से निकाल के उसको दे सकते हो, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इंसान को नहीं होती। You know, मेरे को याद है मेरे फादर यूज्ड टू से कि अगर किसी के लिए ज़रिया बन सको तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम गॉड। यू राइट कि भी सबको आई मीन बड़ा ठीक है, आप उन्होंने देखो कहते हैं कि किसी की सेवा करनी या पेरेंट की सेवा, ये भी सबको कहते हैं मौका नहीं मिलता, ये भी ऊपर वाला मौका देता है। आई रिमेंबर वंस वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, आई डोंट वांट टू नेम हिम, उनके कोई जो ऑफिसर था उसकी मदर दाखिल थी, एम्स की बात है, तो वो उनको मिलने आए, तो वी एज वाज लुकिंग आफ्टर नेचुरली वाज ऑफ द वी हैड टू बी देयर। तो मैंने देखा जब अंदर गए तो जो उसके ऑफिसर की वाइफ थी उन्हें प्रणाम किया, जो भी पैरों हाथ लगाए उनको बेचारा, तो उन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया, मैं तो वैसे ही था खड़ा मेरे को, तो बेटा आपको ना इनकी सेवा करने का मौका मिला है। मैं सोच के भी एल्डर की सेवा करना भी जो है ये सभी को मौका नहीं मिलता, ये भी कोई गिफ्ट ही है आपके ऊपर, जब यू हैव द मीन्स टू डू इट एंड डू इट। सो बड़े मुझे ये ना कल्चर जो आपने आए हैं ये बहुत, अब दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना। अब देखिए आप गोविंद सिंह जी का जो वो कल उनका था ना, जो पानी पिलाते थे, जी, उनका कल था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भी ये सिखाया जाता था कि नहीं, तो उन्होंने अगर पानी पिलाया, कोई दुश्मन को ही पिलाया है, तो उन्होंने कैसे कहा नहीं ये तो दैट मीन्स इज ए ट्रू जोन से उनको भी पानी पिलाना। ये ना जो हमें ये हमारे कल्चर में था कि आप गवान ले लो, मादला जो लेता, कोई बीमार है कुछ है तो लोग चाहता कि किसी ने कहा मैं चाय भेज रहा हूँ, मैं मतलब ये थोड़ा शादी है किसी के घर में तो नहीं मेरे पास कमरे हैं दो आप यहाँ, बिल्कुल अब वो कल्चर ही खत्म हो गया सर। और इसकी बड़ी रिचनेस थी, ये जो चीज़ें हैं। अगेन फिर मेरे बॉस की वाइफ ने पूछा कहते डॉक्टर साहब क्या आपकी शादी के बाद पेरेंट्स बच्चे ऐसे इकट्ठे रहते हैं? हाँ अपने मतलब ऐसा कुछ नहीं, तो दिस इज सपोज टू बी गुड। तो उनके वो यहाँ के बच्चे 18 साल के हुए तो बाहर जाना है, उनके लिए सेपरेट अपार्टमेंट होना चाहे घर, देख कहती मेरा इतना बड़ा घर है, माई डॉटर इज गेटिंग इट, नाउ हैव टू सेट हिम इन अपार्टमेंट। और इनसे ये ना थोड़ा लोग मिस सोच देखते हैं, वो भी देखते हैं भी इस, तो हमें इस चीज़ों को आगे करना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, टेकिंग केयर ऑफ योर पीपल, सेक्रीफाइसिंग फॉर देम, आई थिंक। और जो कहते हैं शेयरिंग से भी टेंशन कम होती है, वो शेयरिंग तभी करोगे जब आपस में कॉन्फिडेंस होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा तो शेयर क्या करोगे। सो ये इशू है स्ट्रेस का। यही चीज़ें अगर हम देखें, स्ट्रेस को ले लेते हैं, seeing seva as a opportunity to be able to be in a position to serve, what is your message to the young cardiologists coming up? Because they are also affected by the new ways of the generation, but pressure भी बहुत है because उतने डॉक्टर्स नहीं है जितने हमारे को चाहिए। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखो सर, if anybody is taking up this profession, I think he must realize he's come to serve. That's your most basic thing. और उसको honestly करना चाहिए, ethically करना चाहिए, irrespective of how much you get. तो कभी हम लिखा था कोई फ़र्क पड़ता है कि वैसे मारुति में जाते हो या मर्सिडीज़ में जाते हो। एज ए प्रोफेशनल इन मेडिकल प्रोफेशन आपका जो मेन है, यू हैव बीन, गॉड हैज़ गिफ्टेड यू दिस प्रोफेशन, आई मीन ये अपॉर्चुनिटी टू बी इन दिस प्रोफेशन, तो आपको ना उसको ट्रू रहना चाहिए। मतलब यू हैव टू वर्क फॉर, आई विल से द सोल ऑफ दिस प्रोफेशन। मैं ये सबको कोशिश करता हूँ कहने के लिए, और ये भी मैं कई बार शेयर करता हूँ, या देखो मरीज हैं इतने,
किसी को नहीं, एनीवन कैन बी सिक, नोबडी नोज कि कब मेरे को बीमारी आ जानी है। मेरे को भी आ सकती है, आपको भी आ सकती है, इनको तो आई हुई है। एज ए पेशेंट हम क्या सोचेंगे कि हमारे को जो दूसरा कैसे हमारा ध्यान रखे। वी मस्ट वर्क विद दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि अगर मैं उसकी जगह हूँ, मैं क्या सोचूं कि डॉक्टर मेरे लिए क्या करेगा। मैं सच्ची कहता हूँ, ठीक है मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं नहीं कहता नहीं, मैं तभी कहता हूँ कि फील करता हूँ कि गवर्नमेंट जो मैं कहता रिस्पेक्ट टू दिस प्रोफेशन इज डिफरेंट, देयर शुड बी सम रेमुनरेशन रीजन। जैसे हम एम्स पीजे में काम करते थे, चलो हमें तनख्वाह इतनी मिलती थी कि हमें ये नहीं था कि बच्चों को पढ़ाने में हमें दिक्कत हो रही है, भी जी देखो मैं ऐसे कैसे करूं, वो नहीं था टेंशन। हाँ ये नहीं था कि आपने गाड़ी कौन सी लेनी है। मैं तो कभी एक अमेरिका फेलोशिप गया और कॉफ़ी रूम में लोग ही बात करते हैं, इसने लेक्चर्स ले लिया वो ये लेना। मैं सोचा यार इनको कारों का ही है, मतलब दिस इज बड़ा। मैं तो ये अब तो हमारे भी यहाँ शुरू हो गया है, बट ऐसा कोई सोचा ही नहीं था कि अगर आप साइकिल पे जाना है या आपने पैदल जाना है या आपने मारुति है या फीएट है क्या है, कि कोई वो इशू नहीं था। बट जो बेसिक नीड्स हैं बच्चों की पढ़ाई का, यू कैन लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, मतलब ये थोड़ा सा इतना तो चाहिए। ये जो रेम्यूनरेशन है, आई टेल यू, आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी, आई होप समबडी, अब रेजिडेंट आते हैं, अब सीनियर रेजिडेंट बनने के लिए डीएम कार्डियोलॉजी आप 28-29 साल के हो जाते हो, 27-28 साल तो मिनिमम है। एंड बाय दैट एज घर वाले भी कहते हैं काका बड़ा हो गया शादी कर, ठीक है ना, और देयर इज ऑलवेज, सो यू मोस्ट पीपल आर मैरिड एट दिस स्टेज। जो डीएम वगैरह करते हैं हमसे, दीज आर एडवांस कोर्सेज, प्रेस्टिजियस कोर्सेज फॉर द नेशन टू हैव स्पेशलिस्ट। नाउ गवर्नमेंट में जो पैसे देते हैं तनख्वाह, सपोज आपको 1-1.5 लाख मिलता है, पर क्या होता है वहाँ पे रहने की जगह मिल जाती है, देखिए हॉस्टल अकोमोडेशन, मैरिड अकोमोडेशन होती है, 1-2 कमरे हैं, बाथरूम अटैच है, किचन है, ठीक है काम चल रहा है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा भी साथ है हो जाता है, बिजली पानी का खर्चा भी वो आपको नहीं देना पड़ता, इंस्टीट्यूशन देता है ना। ये जो प्राइवेट सेटअप हैं, जो यहाँ नेशनल बोर्ड के रेजिडेंट आते हैं, आप उनको, उन्होंने कहा इतने पैसे 85-90 मिलता है, 1000 देते हैं ना। इस जगह पे मैं मैक्स में ही क्रिकेट से रहना हो, कितने का उसको 2 कमरे का मकान कितने में मिलेगा? मिनिमम 25,000 तो लगेंगे, बिल्कुल मिनिमम, वो भी मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। बच्चा है तो उसको पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए फीस देनी पड़ेगी, आजकल पता है क्या हो रहा है। तो एक लड़की ने कहा डॉक्टर मैं जहाँ रहता हूँ मेरे जो नीचे है वो ऊपर शायद स्कूटर चलाता है, वो रहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने इस ब्रेन के लिए वो चीज़ नहीं पूरी कर सकते, हाउ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? हमें इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप देखिए प्राइवेट को, गवर्नमेंट मस्ट आस्क देम, आप उनको अकोमोडेशन दीजिए, आप रेंट करिए, उनको दे दीजिए। मैं ये जो चीज़ें हैं हम जब एक्सपेक्ट करते हैं हमारे प्रोफेशनल क्या करें, हमें कुछ तो उसके लिए, हम लोग, मैं बता रहा हूँ हम पढ़ गए ऐसे ही, मेरा नहीं ख्याल, हम हॉस्टल में जाओ, कमरा हॉस्टल वाले देते हैं गवर्नमेंट। आई मीन एम्स में जब मैं सीनियर रेजिडेंट था तो एक मेरिट अकोमोडेशन मिलती नहीं, एक क्वार्टर भी मिल जाता था। और मेरे को सडनली कुछ ऐसी हुए, घर की ज़रूरत पड़ी, पेरेंट्स को भी आना पड़ा था मेरे पास कुछ, वो मेरे को 3 बेडरूम का घर मिला था उसने। मेरे को ये टेंशन तो नहीं थी कि भी मेरे को ये नहीं है। मैंने एम ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया है, विदिन 2 वीक्स आई गॉट ए 3 टाइप फ्लैट। सो ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। सिस्टम को यंगर जनरेशन में जो हम मैसेज तो दे रहे हैं, पर उनकी नीड भी जो बेसिक, आई वॉन्ट से कि मैं कहूँगा कि उनको कोई बेसिक नीड पूरी करने की, तो इतना तो उनको केयर होना चाहिए। दे मस्ट गेट दिस मच टू, बच्चे का पढ़ाई है अपनी है तो थोड़ा वो कर सकें। हम इस चीज़ पे जो है ना हमें मतलब करना चाहिए कुछ भी। नहीं सर, एब्सोल्युटली, आई थिंक यू नो देयर आर 2 प्रोफेशंस जिसके अंदर वी नीड टू इम्प्रूव। वन इज मेडिकल, सेकंड इज एजुकेशन। ये दोनों एक्चुअली, मतलब मैं किसी से बात कर रहा था कि एक बहुत मेजर डाइकोटमी है, हमें अपने बच्चे के लिए तो एक बेस्ट टीचर चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चे को कभी टीचर बनाना नहीं चाहते। ये ना फाउंडेशन तो टीचिंग करता है,
हम लोग अभी भी अपने टीचरों को मिलते हैं तो अभी भी आप उनको जो जिन्होंने हमें प्रणाम छोटी में करते हैं, पढ़ाया पैर छूते हैं। हाँ, पर उन्होंने भी उस तरह हमें कल्चर दिया है। सर एक चीज़ बताइए कि क्या यही चीज़ है जिसकी वजह से द पीपल हु आर नाउ कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन एज एंड व्हेन दे ग्रो, उन्होंने इतना कुछ देखा है एंड दे हैव बिकम, दे हैव गॉट अ फीलिंग दैट द सिस्टम हैज़ बीन इनसेंसिटिव टू देम, that is leading to unethical practices? नहीं, वो तो देखो, आप जो चीज़ देखते हो, आप सफ़र कर रहे हो, वो कह रहा मैं यू कांट, आई मीन नेचुरली द नेचर विल दैट्स, हाँ भी आया, मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं उस टाइम, मैं तो यहाँ उसे कह रहा कि मैं जो स्कूटर चला रहा है 3 व्हीलर वो मेरे ऊपर रहता है, मैं 20-25 हज़ार से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, मेरे को 85,000 90,000 आप देते हो, मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसका भी जाना, और माई वाइफ कांट वर्क बिकॉज शी इज़, बच्चा है घर पे मेरे, मैं कैसे करूँ, मतलब हम उनको, आप यू कांट एक्सपेक्ट कि दे गो थ्रू दैट एंड देन दे आर टोटली सो मतलब नोवल, मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, देखा है जो आपने भी, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर सर्टेन प्रोफेशन, ये तो नेशन बिल्डिंग है, एजुकेशन इज़ ए नेशन बिल्डिंग। अगर आपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिया, जो हमारी जनरेशन में जो कुछ लोग आए आगे, एडजॉइनिंग कंट्री भी देख लो क्या हुआ, तो ज़्यादा छोटे फैमिली से भी बच्चे आए हैं, लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल हु मे बी नाउ ऑक्यूपाइंग might have occupied must have come from lower and middle class families. जस्ट हार्ड वर्क ही करना था, पर उनको कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब थोड़ा फीस बहुत कम है वो है, तो ये चीज़ें थी, और टीचर भी जो थे कितने डिवोटेड थे, मतलब बुला के घर आपको पढ़ाते, ट्यूशन का तो कुछ सोचा ही नहीं था, ट्यूशन तो कहते वो बच्चा रखता जिसको कुछ आता ना हो, और अच्छे बच्चों को टीचर घर में गांव में बुला के हमें घर में वो पढ़ाते होते थे। सो ये ना हमें थोड़ा सा ये जो टीचिंग अपने हेल्थ का भी क्वालिटी ऑफ, हमें ट्रेनिंग पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उनकी बेसिक नीड पे ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। Of course, they have to be trained to deliver. And ethical practice in this profession, there is no choice. You can't. If you do this, you are not true to the profession. To be very frank, आप कहना हो रहा है, मैं तो देखता हूँ हमारे भी लोग क्या, बट ये गलत है। आपने प्रोफेशन चूज़ किया है, वर्क फॉर द प्रोफेशन। हाँ, ये है कि सिस्टम आज शुड हैव दैट यू हैव द बेसिक थिंग्स, आपको जो मिलना चाहिए रीजनेबल, कि अपना ध्यान तो रख सको। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, इनमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है जिससे you know we are able to build ethical practices without compromising on the financial sustainability of the organization? It is important to run the organization, पैसा भी कमाना है, somebody has to pay for it, whether it's the government, charitable or the patient, somebody has to pay for it. तो कैसे हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं सर? नहीं, सही है कि whenever you have built up a place, रन करने की इतना खर्चा है, these are like white elephants, कैसे, तो जनरेट तो होना है, और जनरेटर का सिर्फ यही है कि पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस हो, एक तो कि जो भी राइट थिंग है वही होएगी, ओवर नहीं होगा, जो आजकल थोड़ा सा ये इशू है नए सिस्टम में, ऐसा किसी में जो ज़रूरी है। मेरा ख्याल है अदर थिंग बड़ी थिंग कि नाउ द टाइम देयर शुड बी इंश्योरेंस टू एवरीबॉडी, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर शॉर्टकट टू दैट, बिकॉज आपने कुछ, मैं तो एम्स पीजे की बात कर रहा हूँ, अटेली हम वहाँ भी जनरेट करते थे। We used to अब वहाँ पे क्या है, मैं पीजे में 7 साल आई वॉज डायरेक्ट, अब पैसा गवर्नमेंट से जो आता है, नेचुरली बिजली पानी मेडिसिन्स हैं, पेशेंट की सर्जरिकल चीज़ें हैं एंड ऑल दैट, तो कुछ हम चार्ज भी करते थे पेशेंट से, जो पुअर हैं फ्री भी करते थे। तो मेरा यही वहाँ था कि नहीं, वी नीड टू जनरेट। हम जनरेशन कैसे सोचते थे कि भी इन्वेस्टिगेशन है, आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो, बाहर उसका आप कराते हो, ये 2000 रुपये लग गया, आप अपना सेटअप में रखो, इंश्योर कि यहीं होगा, क्वालिटी है, वो 500 में हो जाएगा, कौन नहीं कराएगा, अलग कहेगा मेरा यहीं करो, मैं क्यों 2000 दूँ, ठीक है ना। सो आई से, और वो 500 में अगर आप 600 कर दो, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लो उससे, यू वॉन्ट माइंड, दैट बिकम्स योर काइंड ऑफ ए किटी टू हेल्प द पुअर, जो पैसे नहीं दे रहा।
तो ये चीज़ें हमने सभी जनरेट करो ताकि जो पुअर आदमी है, गवर्नमेंट से इतने पैसा मिल नहीं रहा कि हम सारा कुछ करें, हम उनसे थोड़ा सा बचाते थे, उनके बजा के दिस विल ट्रांसफर टू दी पुअर पीपल, ताकि हमें एक बार तो जो ग्रांट आई थी जो हमारे अभी नॉन प्लान इट वाज अराउंड एंड वी हैड टू हैव अनदर 12 करोड़ टू कम में, तो वी पेड फ्रॉम आवर जनरेशन एंड आई टोल्ड दी गवर्नमेंट, देखो हमने किया आप हमें दो, बट हमें जनरेशन करना चाहिए, एथिकली करना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि प्राइवेट इंश्योरेंस इज़ दी ओनली वे। वाकई बड़ा मुश्किल है पीपल आजकल जो देखते हैं इंश्योरेंस ही ज़्यादा, बट ठीक इसको थोड़ा फ्रेंडली करो, सब्सिडाइज कर दो, गवर्नमेंट कैन पे फॉर समथिंग फॉर ए फैमिली एंड फैमिली शुड पे, ये हमें इनकरेज करना चाहिए, ए सब्सिडाइज काइंड ऑफ इंश्योरेंस सो दैट एवरीबॉडी फील कॉन्फिडेंट कि कभी मुसीबत आ गई कोई इतना दुख मैं इलाज करा सकूँगा। बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की, जब किसी को हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, मेरे को याद है 95 में मेरे फादर को जब प्रॉब्लम हुई थी तो ऐसा लग रहा था हेवन्स हैव फॉलन। अब तो ज़िंदगी बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें, ईज़ ऑफ ट्रीटमेंट आ गया है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आ गया है। हाउ इज़ इट द परसेप्शन ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम different from what it was few decades ago? नहीं देखो, एक तो ना कि वी राइट के नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव मेडिकेशन, वी हैव मीन्स टू हेल्प पीपल, ठीक है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस भी पेशेंट को देना पड़ेगा। कई बार पेशेंट लूज़ कर जाता है कॉन्फिडेंस, यार क्या होगा मेरे को हार्ट अटैक हो गया है, दोबारा ना हो जाए, आई हैव स्मॉल किड्स टू, आई हैव डॉटर्स टू मैरी। हमें एक तो है कि वन एस्पेक्ट इज़ गिविंग द ट्रीटमेंट विच इज़ पॉसिबल, और वहाँ पे हो सकता है कि कॉस्ट इशू आए तो मे बी देन दैट्स व्हाट आई से कि थोड़ा सम वुड सपोर्ट शुड बी देयर कि नहीं सबको मिल जाएगा अगर ज़रूरी है। दूसरा है कॉन्फिडेंस इन सेंस, कई लोग ना डर जाते हैं और डर ही मारता है कई बारी, मतलब यू हैव टू ब्रिंग आउट ये जो चीज़ है टू टेल पीपल डोंट वरी, यू कैन बी एज प्रोडक्टिव एज बिफोर, बट एंड मोस्ट पीपल आर एबल टू, there are very few who may get so serious kind of complication जहाँ पे advanced therapy या कुछ होता है, large number of people are able to manage themselves properly, but ये कई बार इंसान का confidence शेक होता है, एक तो वो build करना चाहिए, दूसरा थोड़ा कई बार लोग obsessive बड़े हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ obsession भी disease है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं देखो जी अब आप अटैक हुआ है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आफ्टर फ्यू ईयर्स ठीक है यू आर बैक इन टू योर सिस्टम एंड ठीक है, अब जाते हो कहीं तो अब हर एक को कहना यार मैंने नहीं खाना, ये नहीं खाना, मैं कहता हूँ यार आप कहिए किसी को, देख लीजिए वो है थोड़ा एक डाल लिया कोई आपको थोड़ा फोर्स, अब किसी को ये ना कहिए मैं ये नहीं करना, अगर कोई मिठा भी है आप नहीं खाना, थोड़ा सा एक चमचा डाल लोगे आपकी प्लेट में है उसको स्लो कर दो खाना, बट आई मीन्स डोंट फील टू शो कि मैं हैंडीकैप्ड हो गया हूँ, मेरा पर्सनल फीलिंग है ऑब्सेशन थोड़ा इट ऑल्सो अफेक्ट्स यू, सो बी ब्रेव एंड बाकी तो ऊपर वाला सच्ची बात है। और क्या आज की डेट में आर पीपल एबल टू लिव ऑलमोस्ट अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर हैविंग अ कार्डियक प्रॉब्लम? यस, वी गिव एग्जांपल टू देम, वो आता है कि देखो ये उसके तरफ देखो, and there are luckily many people in society who have big names who have gone through this. Then why are we not creating awareness about this? कि पहली बात है कि आप प्रिवेंट करो, लेकिन अगर बाई चांस आपको कंडीशन आ गई है so there is nothing to worry today. ये जरूरी है, देखो यू मस्ट टेक ड्यू प्रिकॉशन, ये भी जरूरी है, कई बार लोग दवाइयाँ भी छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ देखो वी डिस्करेज मेडिसिन, कोई इशू नहीं है, नॉर्मली इंसान को दवाई नहीं खानी चाहिए, बट जब ये ज़रूरी है इट्स लाइक योर फूड, हम खाना खाते हैं जीने के लिए, ठीक है ना, नो इन दैट फूड यू हैव सम अदर फूड ऑल्सो, सो टेक योर मेडिसिन दैट वे ताकि आपकी कंप्लायंस रहे। तो जब आप प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू कीप वेल, तो ये जो कंप्लायंस उससे भी कभी होता है, दवाई छोड़ दी फिर होता है, एक तो ये है। दूसरा ये जो यूर वेरी राइट कि ये कॉन्फिडेंस जनरेट करना, ये थोड़ा सा ना कहते हैं ना मेडिसिन
साइंस है, द प्रैक्टिस इज एन आर्ट। ये फिजिशियन की ये भी एक तरह की ड्यूटी है कि हाउ टू जनरेट कॉन्फिडेंस इन वंस पेशेंट। बिकॉज मैं नहीं तो ना इंसान कई बार घबरा जाता है, एवरी वन, हम ही आपको कुछ हो जाए तो लगता है क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सो बट वो थोड़ा डिपेंड्स ऑन योर फिजिशियन डॉक्टर, हाउ यू थोड़ा ब्रिंग हिम, ये भी एंड लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स आर एबल टू डू वेल। Is this being taught in medical schools? Or should this be taught in medical schools? देखो ये कि पेशेंट को मैनेज कैसे करना है? आजकल ये थोड़ा जो अब तो थोड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है, कम्युनिकेशन जो ये प्रोफेशनलिज्म हम कहते हैं मेडिसिन में क्या है। नॉर्मली हम लोग सीखते थे फ्रॉम योर सीनियर्स। जब वार्ड में राउंड होते थे, जो पेशेंट से वो बात करते थे वो किस तरह कन्वे करते थे, दैट यूज्ड टू बी लर्निंग एक्सपीरियंस, हम कैसे पेशेंट को अप्रोच करना है। और वो दे यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ, एंड दैट वाज वेरी, ये जो क्लिनिकल मेडिसिन जो थी ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन पे हो गया, ये करा लो वो करा लो, पर क्लिनिकल ये थोड़ा यू लर्न फ्रॉम। बट नाउ देर आर knowing its deficiency, there are like professionalism is becoming a kind of that, people have lectures on that, how to approach a patient, क्या है ये चीज़ें हैं। but we must, a professional should have that kind of a understanding, but कई बार ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती। बट सर अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लेंट्स दैट पेशेंट्स हैव टुडे कि डॉक्टर टाइम नहीं लगाता हमारे साथ। और अभी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आपको डॉक्टर से मिलते ही नहीं हो फिजिकली इन पर्सन। सो हाउ कैन वी क्रिएट दिस बैलेंस डिस्पाइट ट्राइंग टू बिल्ड एफिशिएंसी यूजिंग टेक्नोलॉजी? देखो वो ये ना जो अब क्वेश्चन है, मैंने कहा ना प्रैक्टिस तो आर्ट है। इंसान को आप टेक्नोलॉजी से, जैसे में AI का भी यही इशू है, जो उसमें फीड करोगे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट जो आपकी एम्पैथी समझाना है वो तो ह्यूमन को ही करना पड़ेगा। वो कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकेगी इन मेडिसिन। मेरा पर्सनल फीलिंग कि ये बहुत जो ये ठीक है, यू मे स्पेंड टाइम लेस बिकॉज अब इन्वेस्टिगेशंस हैं, बट फ्यू ये जो कम्युनिकेशन समझा, अब टेली मेडिसिन है, दिस इज़ अ गुड वे ऑफ। नॉर्मली हम कहते हैं कि जैसे मैंने किसी को देखा है आज दिखा के गया है, से यू कैन फॉलो ऑन टेली मेडिसिन या वर्चुअल कंसल्टेशन का, आई हैव सीन यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो देन विदाउट सीइंग यू नेक्स्ट टाइम आई कैन मैनेज। बट सपोज आई हैव नॉट सीन यू, मैं जितनी कई बार वर्चुअल कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उनको थोड़ा कहता हूँ कि या तो आप किसी अपने डॉक्टर से बात करा दो, तो मेरे को पता लगे भी क्या पल्स कैसे रहती है, ब्लड प्रेशर। अब किसी को चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर तो जी कितना ये 130 ठीक है, बट हैज़ एनीबॉडी नोटिस ब्लड प्रेशर ऑन स्टैंडिंग? इट मे बी पोस्टल फॉल्ट टू हिम। सो यू नो जो these are also important because your technology has hugely, I mean देखिए अब यही तो अब ECG बता रही है आपको 2 साल के बाद अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह की नॉलेज आ रही है। तो बट ये जो इशू है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनिंग, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और मेडिसिन में मैं सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी विल हेल्प, इट विल कॉम्प्लीमेंट्री, बट रिप्लेसिंग टोटली मेरा डाउट है कि बिकॉज ह्यूमन माइंड भी तो है ना। स्पेसिफिकली फॉर ICD CRT, इसमें हाउ इज रिमोट मॉनिटरिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक दिस हेल्पिंग यू? मतलब एक बार ही पेशेंट आया, थेरेपी हो गई, वो चला गया है, हाउ इज इट चेंज द वे यू प्रैक्टिस एंड हेल्पिंग पीपल लिव बेटर? ये जो ICD CRT इनके प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कितना हेल्प कर रहा है, क्या कुछ चेंज करना है। आगे हम एवरी 3-6 मंथ को बुला के करते हैं। नाउ वी हैव ए रिपोर्ट मॉनिटरिंग एट सिटिंग एट होम, आई कैन प्रोग्राम इट, आई कैन सी कि क्या हुआ है। सो बर्डन हैज डोंट हैव ट्रैवल फ्रॉम दैट डिस्टेंस टू हियर। ये ज़रूर है कि इट एड्स टू द कॉस्ट। जो मशीन है उसके फ्यू लाख की है, अगर आपने लगाई है डिवाइस, यू वांट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी टू स्पेंड फ्यू लाख फॉर दैट। वो थोड़ा अपने नॉट मैनी कैन afford it, but that's how technology is। आपका तो आपके जो
स्मार्टफोन है उस पर ही देख उसमें लें। सब कुछ ECG वगैरह इसी तो अभी से देख, अब देखो डॉक्टर साहब मेरा ये है और मेरे कई पेशेंट्स हैं वो रेगुलेटरी वो रिकॉर्ड करके भेज देंगे अब ये हो गया जी इसने। So these are technologies improving or helping in providing the care because ये तो so it is both helpful to the patient that he doesn't have to be अभी हुआ है तो अभी बात करके आप अपना सॉल्व कर सकते हो, and to the physicians also कि he doesn't have to come all the time. So this is and ये तो टेक्नोलॉजी का तो सोचना ही, अब देख लीजिए अब टेलीफोन का क्या है, अब इस मोबाइल में आप यू कैन टॉक, यू कैन टेक फोटोग्राफ्स, अब कैमरे कहाँ रह गए? नहीं लोग तो भी जहाँ आई नो व्हेन यूज्ड टू गो अब्रॉड यार अच्छा कैमरा लेके आए, तो अब कहाँ कैमरे का कोई कैमरे खत्म है, पता नहीं कोडेक उनके पास अब क्या बिजनेस होगा, जो सारा इसमें ही है। एंड टेलीफोन का भी देख लीजिए क्या होता था शुरू में, जब आई रिमेंबर जाके हम तो गांव में कॉल बुक करनी पड़ती थी, भी डाकखाने में टेलीफोन है बुक करो तो 2 घंटे बैठो वहाँ पे फिर आएगी आपकी। नाउ हेल्थ में भाई कैन यू लुक एट योर ECG, अब मैं ही हूँ तो भेज दो कि जी मेरा तो ये रिदम चल रहा है। सो इस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हेल्पफुल, इट हेल्प बोथ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड बट एट द सेम टाइम मेडिसिन में थोड़ा आई विल से द पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन भी बड़ा थोड़ा वैल्यू रखता है। सर आपने जो बात करी पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन, मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे तो देयर वाज दिस फैमिली फिजिशियन, हर लोकेलिटी में हर मोहल्ले के अंदर एक फैमिली फिजिशियन होता था, वो आपके घर का हिस्सा होता था एंड दे वुड नो एवरीथिंग अबाउट यू। मतलब आप चले जाओ कि मेरे को यहाँ पे पेट में दर्द हुआ, कुछ नहीं यार तुम खाना बंद करो फ्राई वाला। दिस पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ डॉक्टर्स हैज़ गॉन मिसिंग and today with technology available of Google and everything, everybody looks at the symptoms and then runs to a specialist. अब वो स्पेशलिस्ट बोल देते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, बट प्रॉब्लम तो हुई थी, वो इसके रिलेटेड नहीं थी, बट कहीं से तो कुछ तो हुआ था। स्पेशली इन केस ऑफ हार्ट, a general physician also plays a very important role. How can we bridge that gap today, sir? See, family medicine, Kalojana, is very, very important. Some of the other, as you rightly said, we are family doctor जो था आपके घर का था. No, he was not only your sometime philosopher कह लो, helper also and guide also, हर एक चीज़। और वो अच्छा है बिकॉज ना द फैमिली बस कॉन्फिडेंट कि हमारे डॉक्टर आ गए क्या है। हाँ, अगर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है वो किससे करेगा। ये कॉन्सेप्ट जनरल प्रैक्टिस का जो हमारे था, ये जब स्पेशलाइजेशन का शुरू हो गया वो डिरोड होना शुरू हो गया। इस चीज़ पे ना थोड़ा सा आपने अच्छा सुना, बिकॉज ये MBBS लोग मोस्टली होते थे एज ए जनरल फिजिशियन। अब इतनी नॉलेज बढ़ गई है कि फॉर ए सिंपल MBBS विथ 4.5 कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्रैब एवरीथिंग। लोग पहले ये भी सर्जरी भी कर लेंगे, आपका जो बॉयल है वो MBBS इंसाइज भी करता था, फलाना था। तो तभी ये फैमिली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है। और जब मैं मेडिकल काउंसिल में था 2012 में, हमने फैमिली मेडिसिन की डिग्री शुरू करी थी। वी थॉट वी शुड वर्क फॉर इट, वी शुड ब्रिंग दिस सिस्टम बैक। और मैंने तो एक पीछे पे नहीं आर्टिकल लिखा है, ट्रिब्यून में था, फैमिली मेडिसिन, मैं आपको भेजूंगा, यू शुड रीड अबाउट इट। कि अब MBBS में पूरा तो हमें 3 साल का सेपरेट एक MD हो जो फैमिली मेडिसिन हो, द पीपल। तो फिर इशू ये आया कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी तो चाहिए जी। अब गवर्नमेंट ने एक सिस्टम है, जैसे भी PSC है, CSC है, जो डॉक्टर है ये हो गए, इतने होंगे। फैमिली मेडिसिन की डॉक्टर की जगह ही नहीं थी, ये अब इन्होंने शुरू करी है। दे हैव एक्सेप्टेड इट कि फैमिली मेडिसिन डिग्री के लिए आप मेडिकल स्पेशलिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये जो चीज़ें, बिकॉज फैमिली मेडिसिन इज जनरल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हर एक आदमी बीमारी, थोड़ा लिवर के पास भाग जाए, चाहे वो हार्ट की हो, साथ साथ हार्ट का ना भी हो तो ये ना सोबर स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो बैड, इट्स ऑल्सो बिकमिंग ए। तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस। लकीली आई एम द प्रेजेंट गवर्नमेंट
ऐसा देयर इज अ ह्यूज एफर्ट ऑन फैमिली मेडिसिन ना। उसके लिए ये कि ट्रेनिंग ऐसे कर लो कि 3 साल जिसमें उसमें पीडियाट्रिक भी पढ़ा होगा, पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट वो पढ़ा देगा। वी डोंट हैव टू हैव डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन इज टू से, वी हैव 1 or 2 पीपल हु कोऑर्डिनेट दिस। सर्जरी डिपार्टमेंट उसको थोड़ी सर्जरी सिखाएगा, पीडियाट्रिक वाला पीडियाट्रिक वाली सिखाएगा, आई वाला आई सिखाएगा। सो दे शुड बी सेपरेट डिपार्टमेंट के नहीं, दीज पीपल शुड ट्रेन दोज 3 years एंड दे ओनली, एंड उनके लिए आप थोड़ा स्पेस बनाइए फॉर जॉब्स। या जो लोग जॉब में फैमिली मेडिसिन में करा है, मे बी अलाउ देम कि बियॉन्ड देयर जॉब टाइम दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू द फैमिलीज ऑन पेमेंट समथिंग, और उनको थोड़ा अट्रैक्शन दीजिए। बिकॉज अगला कहते हैं मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बनूँ, मैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट बनूँ, इफ समबडी इज अडॉप्टिंग दिस, उसके पास भी अट्रैक्शन चाहिए। हाँ, ये फैमिली मेडिसिन। और एक हमने कहा था भी जो MBBS है, देखिए उनको लिए ब्रिज कोर्स करा दें हम साल का, तो उनको भी MD फैमिली मेडिसिन कर दो। तो इस पे मैं आई विल सेंड यू दैट आर्टिकल विच वाज आई थिंक पब्लिश्ड ओनली, मैं तो ट्रिब्यून में लिखता रहता हूँ बिकॉज चंडीगढ़ में रहा हूँ थोड़ा 7 साल, तो थोड़ा है कनेक्शन। तो यही दिस इज द वन। अभी तो प्रेजेंट आई मस्ट से नीति योग में ये इशू है, एंड दे आर ट्राइंग टू टेल एवरी इंस्टीट्यूशन, जितने एम्स नए बने हैं सब में अब फैमिली मेडिसिन डिग्री शुरू हो रही है। एक मैंने उनको ये कहा है, मैंने फ्लैग दिस इशू कि ये ना हो, इट मे नॉट बिकम ए बैकडोर एंट्री फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन। क्या होता है कि MBBS किया, अपने MD मेडिसिन है, उसके बाद आप कार्डियोलॉजी में जा सकते हो, नेफ्रोलॉजी में। अगर सपोज बच्चे को MD मेडिसिन तो मिलने दी, फैमिली मेडिसिन कर ली, अगर आपने उसको भी लव कर दिया फिर तो वही खत्म हो जाएगी। पीपल, सो आई हैव फ्लैग, प्लीज मेक श्योर द फैमिली मेडिसिन स्टेज एज फैमिली मेडिसिन, बट मेक इट अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव, सो दैट पीपल में फील कि हम जाके डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में भी काम करेंगे, बट उनको एनफ मिलना है, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि दिस इन मेडिसिन दिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज ए स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ हेल्थ। सो फैमिली मेडिसिन आनी चाहिए आपने। अच्छा, एंड आई बिकॉज दिस वेरी, ये जो आप जनरल प्रैक्टिशनर फैमिली मेडिसिन USA अब क्यों वहाँ आ रही हैं, दे हैव रियलाइजिंग। ऑफ कोर्स जैसे NH UK हैज़ ए डिफरेंट सिस्टम, अच्छा उन्होंने किया हुआ है कि NHS तो एवरीबॉडी इज कैन गो देयर। सो ये फैमिली मेडिसिन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड एंड वी शुड ब्रिंग दिस काइंड ऑफ स्पेशलिटी, ताकि 3 साल एक्स्ट्रा में लोग नॉलेज गेन कर लें, जो कि सिंपल MBBS में मिलनी मुश्किल है। सर, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, you appear to be very, very calm. I've interviewed a lot of doctors, but you're very, very calm, composed. Being in a in a practice where there's a lot of pressure, with your reputation, everybody wants to come to you, personally meet you. How do you take out time for yourself, and how do you ensure this calmness? देखो, जो पहला एक तो 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो अगर अपने लिए टाइम जो कह रहे हो, या दूसरा कामनेस। तो कामनेस तो ये है कि थोड़ा वी हैड टू सॉर्ट ऑफ, इसमें कोई बात नहीं है, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ अनलेस बिकॉज योर जो आपकी ड्यूटी यही है कि हाउ यू हेल्प ए पेशेंट, दैट्स योर ड्यूटी, एंड उसको आपको करना है। ये इसका कोई आपने ये यू हैव बीन you're fortunate, God has given you this opportunity to help others, इसमें एक तो करना है, आपकी ड्यूटी है। दूसरा जो टाइम टू योर सेल्फ वाला बात है ना, वो थोड़ा सच्ची बात कहूँ कि मैंने थॉट के भी जो भी आपके पास टाइम है, अगर आप किसी को कुछ हेल्प कर सकते हो वो आपको ठीक है। अपने लिए जो है क्या है, मतलब मैं एक रुकूँगा सबको, I mean regular routine, or I mean you must be sure that you keep your health healthy. उसके लिए जो भी हैं वो एक्सरसाइज करो, खाने में ध्यान रखो, गलत ना सोचो। ये भी कहते हैं कि cunningness and crookedness creates hormones in the body which can be harmful. If you are clean, you probably generate hormones which helps your systems. मेरे को तो ये आई रेड इट इन वन ऑफ द स्टडीज दिस वेरी कि ये भी चीज़ ज़रूरी है। आपने देखा होगा लोग पावर हो जाती है तो बूढ़े भी यंग हो जाते हैं,
कई ऐसी एग्जांपल हैं बड़े, लेकिन अंदर बॉडी के भी ना जनरेशन है इस तरह के हार्मोन्स की, इस तरह के केमिकल्स की, जो अगर आप अपने में थोड़ा सा साफ ठीक हो, मैं कहता हूँ नो बॉडी कैन, यू कैन डिसीव एनी बॉडी एंड नॉट योर कॉन्शियस. ही कॉन्शियस नोज व्हाट यू आर डूइंग. तो जो आपकी वो कन्फ्लिक्ट होएगी with your conscience and yourself, that's not healthy. You know, this is so true, and I think there's a message here for everyone who's watched this video, is that one for the doctors, that choose your profession very carefully. If you are choosing to become a doctor, if you're choosing to become a cardiologist, keep a feeling that you're getting an opportunity to serve people, and you must ensure that you're getting into it because you enjoy being a cardiologist, because that is when you lead a very happy, content, and a life which is filled with the feeling of being useful to everyone else. And for the people, I think it is a very, very important message. Try and understand your body. Try and keep yourself healthy. Be mindful of what you eat, how you spend your time. And also for the corporates, I think that was a very big message, that I think every leader in the corporate must perceive it as their responsibility to ensure that everybody working in the organization is happy and living a work life without too much of anxiety that could create a harm for their body. With that, thank you so much, Dr. Talwar, for your time. Thank you, Nirula Sahab, so kind of you. It's a pleasure. So thank you so much. Thank you.